دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس رات میں نے تمہیں دیکھا تو چونک گیا تھا۔ تمہارا حلیہ اگرچہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں کی رنگت مختلف تھی، لیکن مجھے شبہ ہو گیا تھا، اور اگلے روز جب انسپیکٹر وشواناتھ کی لاش ملی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تم ہی تھی، اور تمہارے ساتھ شمروز تھا۔ جس رات تم نے ہمیں مہاراجہ کلب میں دیکھا تھا، اس سے ایک رات پہلے ہمیں بھی تمہارے بارے میں کچھ بھنک مل گئی تھی، یا یوں کہو کہ تمہارا نام معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، او وہ کیسے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس روز لودروا کے مندر میں تہ خانے اور خفیہ سنگوں کا انکشاف ہوا تھا، اور جگل ناتھ اور دوسرے سیکیورٹی گارڈز کی لاشیں ملی تھی، اور تم نے اپنے ماما مسٹر راؤ کو اس بارے میں بتایا تھا۔ میں نے کہا، او تو تم میرے ماما کو جانتے ہو؟ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہارے ماما سے میری دوستی اسی روز ہو گئی تھی جب ہم جیسلمیر پہنچے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا، اس طرح میں اسے کسی اور چکر میں ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ ہمارے ہاتھوں ہونے والی تباہیوں کو نظر انداز کر کے تم کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہو۔ میں تم لوگوں کو اس ملک سے فرار ہونے کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ پولیس اور تمام ایجنسیوں کے تمام ایجنٹ شکاری کتوں کی طرح تم لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ تم لوگ زیادہ عرصہ تک چھپے نہیں رہ سکو گے۔ جیسلمیر اور جے پور میں تمہارے تمام رشتہ داروں کے گھروں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی صورتحال میں تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، اور میں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ تم ہماری محبت میں تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ مطلب کی بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ بابو راؤ چند لمحے میری اور سیتا کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر بولا، میری گاڑی پوکھران پہنچانی ہے۔ پوکھران؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تم ہمیں سرحد پار بھجوانے کی بات کر رہے تھے، اور پوکھران تو سرحد کی طرف نہیں ہے، یہ تو مخالف سمت میں ہے۔ ہم تو اور اندر کی طرف چلے جائیں گے۔ شبہ ہے کہ تم لوگ اس طرف سے سرحد پار کر کے سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، اس لیے تھر کے سرحد پر کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ بابو راؤ نے جواب دیا، پوکھران سے میرا ایک آدمی تم لوگوں کو انوپ گڑھ یا چندی گڑھ تک پہنچا دے گا۔ وہاں سے تم لوگ آسانی سے پنجاب کی طرف نکل سکتے ہو۔ پنجاب سے سرحد پار کرنا تم لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ پوکھران تو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں، زیادہ سے زیادہ 120 کلومیٹر ہوگا۔ تم اپنی گاڑی خود کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اور پھر اس گاڑی میں ایسی کیا بات؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اس گاڑی میں کیا خاص بات ہے۔ بابو راؤ نے میری بات کاٹ دی، اور گاڑی میں خود کیوں نہیں لے جانا چاہتا؟ تمہیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے، اور تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ ضمانت تو اس بات کی بھی نہیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد تم لوگ اپنے گھر تک پہنچ سکو گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ہمیں تمہاری یہ پیشکش منظور ہے۔ ہمیں کب جانا ہوگا؟ میں کل شام تک تمہیں بتا دوں گا۔ بابو راؤ نے جواب دیا، شہر سے باہر جانے والوں کو بھی بڑی سختی سے چیک کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنی شناخت پیش نہیں کر سکتا اسے روک لیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں تصدیق ہونے کے بعد ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بسوں اور ٹرینوں سے سفر کرنے والے مسافروں کو بھی بڑی سختی سے چیک کیا جاتا ہے۔ میں تم لوگوں کو کاغذات بنوا دوں گا، اور تم لوگوں کو یہاں سے نکلنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، کل کہاں ملاقات ہوگی؟ دھوبی پاڑے کی مین سٹریٹ پر ممبئی ہوٹل کے نام سے ایک مارواڑی کا ریسٹورنٹ ہے۔ بابو راؤ نے کہا، مارواڑیوں کے ریسٹورانٹ عام طور پر نہایت تھرڈ کلاس اور گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں۔ ان ریسٹورانوں میں چرسیوں اور موالیوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور ہم جیسا کوئی شریف آدمی وہاں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
लेकिन मुंबई होटल एयर कंडीशन और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें वहाँ मिलूंगा और तुम अकेले आओगे। डन। मैंने उसे हाथ मिलाया। लेकिन एक बात जहन में रखना, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं, मौत से नहीं डरते। लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है, बाबूराव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी कुछ लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ ताकि बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सकूं। मैं जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा। ये वीराना अब वीराना लगने लगा था। तकरीबन सभी लोग जा चुके थे। बहुत सारे ठेलों की बत्तियां भी बुझ चुकी थी। इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। ठीक है मिस्टर बाबूराव, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कल शाम 7 बजे मुंबई होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजीव वगैरह ठेले के करीब बेंचों पर परेशान बैठे थे। बाबूराव ठेले वाले को पैसे देकर दूसरी तरफ चला गया और हम राजीव वगैरह को लेकर उस तरफ चल दिए जहां हमारी किराए की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर हमारा मुंतजिर था। हम गाड़ी में बैठ गए तो उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहाँ चंद गाड़ियां अभी तक खड़ी थी। मैंने वीराने में इधर उधर देखा, बाबूराव नजर नहीं आया। वो अंधेरे में मदगम हो चुका था। जब हम शहर में दाखिल हुए तो अभी सिर्फ 9 ही बजे थे। हमने एक मोड़ पर किराए की गाड़ी छोड़ दी और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए धोबी पाड़े की तरफ रवाना हो गए। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। हम रास्ते भर खामोश रहे, लेकिन घर पहुंचते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। मैंने और सीता ने राजीव वगैरह को असल बात नहीं बताई थी, लेकिन इस बात पर सभी को हैरत थी कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमें कैसे छोड़ दिया था। शोभा उठकर बावर्ची खाने में चली गई थी। कुछ देर बाद वो चाय बना कर ले आई तो मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। हम उस वक्त वाकई चाय जैसी किसी चीज की तलब महसूस कर रहे थे। भूख किसी को नहीं थी। बिलपुरी से ही पेट भर गया था, इसलिए हमने खाने के बारे में सोचा भी नहीं। चाय के बाद हम लोग एक ही कमरे में बैठे बातें करते रहे। 12 बजे के करीब शोभा राजीव उठकर अपने कमरे में चले गए। सीता और कल्पना दोनों एक कमरे में सोती थी और मैं अलग कमरे में सोता था। जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वो उन दोनों का था और कल्पना चारपाई पर लेटी ऊँग रही थी। 1 बजे के करीब मैं अपने कमरे में आया तो सीता भी मेरे पीछे ही चली आई। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा हुआ था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और हम इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबूराव के बारे में बातें करने लगे। मेरा ख्याल है इधर भी कोई बहुत ऊंचा खेल खेला जा रहा है, सीता कह रही थी, और बाबूराव कुछ लेकर इस खेल से निकलना चाहता है और वो कुछ भी इतना कुछ होगा कि वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकेगा। मैंने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस खेल से निकलना चाहता है तो हमारा सहारा क्यों ले रहा है और वो अपनी कार हमारे जरिए यहाँ से पोखरान क्यों भेजना चाहता है? क्या वो सब कुछ इस कार में होगा जिसके लिए वो यहाँ से फरार होना चाहता है? नोटों से भरी हुई बोरियां, सोना या कोई और ऐसी चीज? वो इतना बेवकूफ नहीं है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि नोटों से भरी हुई बोरियां और सोना हमारे जरिए यहाँ से बाहर भेजे। कार में यकीनन कोई ऐसी चीज होगी जिसे वो खुद नहीं ले जाना चाहता, मसलन कोई बहुत ही अहम राज। वो कार हमारे जरिए भिजवाना चाहता है ताकि हम पकड़े जाएं, तो सारा इल्जाम हम पर गिरे कि हम सरकारी राज लेकर भाग रहे थे। मतलब तो हम पहले ही हैं। इस बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया जाएगा। यकीनन ऐसी ही बात होगी, सीता ने कहा। और हमारा जैसलमेर से पोखरान का सफर हमारे जीवन का आखिरी सफर भी साबित हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि कल्पना और राजीव वगैरह इस सफर में हमारे साथ हों। मैंने कहा, राजीव तो अपना कोई बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन कल्पना के लिए परेशान हूँ। वो बहुत मासूम लड़की है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अगर वो अकेली रह गई तो खूंखार भेड़िए उसे खा जाएंगे। कल्पना को मैं भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है। सीता ने कहा, हम जमीनी हकायक से मुंह नहीं मोड़ सकते और न ही हम किसी खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बाबूराव ने ठीक ही कहा था, हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम जीवन भर एक मकान की 4 दीवारी में महसूर रहें, और इस बात की भी जमानत नहीं है कि हम किसी एक जगह पर मुकैयद रहकर भी महफूज रहेंगे। हम हिंद सरकार को यहाँ नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा चुके हैं। 3 इसराइली एजेंट हमारे हाथों मारे जा चुके हैं और तुम उन यहूदियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो। दुनिया में कहीं उनका एक आदमी भी मारा जाए तो जब तक वो कम से कम 100 बेगुनाहों को मौत के घाट ना उतार दें, चैन से नहीं बैठते। फलस्तीन और लबनान में यही सब कुछ हो रहा है। भारत से इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यहाँ तो इसराइल अपनी इस पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने आदमियों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वो भारत सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेगा। कैंप की तबाही के सिलसिले में तुम्हारा नाम सामने आ चुका है। तुम्हारी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए यहाँ रहना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। बाबूराव ने ठीक कहा था,
हमें जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि वो अपने किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हमें फरार का एक रास्ता भी दिखा रहा है, लेकिन हम उसके मंसूबे पर अमल नहीं करेंगे। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हम पोखरान जरूर जाएंगे, सीता ने जवाब दिया। गाड़ी उसके आदमी के हवाले करके हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? मेरा इशारा कल्पना और राजीव वगैरह की तरफ था। मैं एक और रुख पर सोच रही हूँ। मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। सीता बात जारी रखते हुए बोली, मेरी माता जी के कजन बाड़मेर में रहते हैं, वहाँ उनकी खेती बाड़ी है। हम राजीव और कल्पना वगैरह को बाड़मेर भेज देते हैं, बाद में हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की सरहद वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हम राजीव और शोभा को हिंदुस्तान ही के किसी शहर की तरफ भेज देंगे और कल्पना को लेकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाएंगे। तुम एक कश्मीरी मुजाहिद हो, पाकिस्तान में तुम्हारा बड़ा नाम है, वहाँ तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन तुमने शायद बाबूराव की बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कहा, उसने बताया था कि थर की सरहद की कड़ी निगरानी हो रही है। सरहद बंद ही क्यों न कर दी जाए, स्मगलरों के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा राजेंद्र नाथ की सारी जिंदगी बाड़मेर में गुजरी है। वो खुद स्मगलर तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से उसके ताल्लुकात जरूर होंगे। वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। हमारी दास्तान तो वहाँ तक भी पहुँच चुकी होगी। मैंने कहा, मुमकिन है बाड़मेर में भी इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद हों और वहाँ आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही हो, या मुमकिन है तुम्हारा मामा देशभक्त साबित हो और खुद ही हमें पुलिस के हवाले कर दे। मामा राजेंद्र नाथ ऐसा नहीं कर सकता, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी एक बेटी मेरे चाचा के बेटे से ब्याही हुई है। मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती करके वो अपनी बेटी के जीवन में कांटे नहीं बिछाएगा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कल सुबह ही उन्हें बाड़मेर भेज दिया जाए, सीता ने कहा। और उस दौलत का क्या करोगी? मैंने पूछा। कुछ जेवर हम राजीव को दे देते हैं, बाकी अपने पास रख लेंगे। सोना तो सरहद पार भी हमारे काम आ सकता है, सीता ने जवाब दिया। हम कुछ देर तक प्रोग्राम बनाते रहे, फिर सीता राजीव और कल्पना को जगा कर ले आई और उन्हें अपना मंसूबा समझाने लगी। राजीव, कल्पना और शोभा सुबह सवेरे ही घर से रुखसत हो गए। उन्हें जो जेवरात दिए गए थे वो कल्पना और शोभा ने पहन लिए थे और उन पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता था। बाबूराव ने बताया था कि शहर से बाहर जाने वालों को भी चेक किया जा रहा था। पुलिस और इंटेलिजेंस को सीता और शमरोज की तलाश थी। दोनों जवान और हसीनो खूबरू थे। उनके हुलिये भी पुलिस और इंटेलिजेंस को किसी हद तक मालूम हो चुके थे, लेकिन कल्पना, शोभा और राजीव में से कोई भी इन हुलियों या मयार पर पूरा नहीं उतरता था। इसलिए तवक्को थी कि उन्हें शहर से निकलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल हमारी बेचैनी दोपहर तक बरकरार रही और दोपहर के बाद हमने अपने तौर पर यकीन कर लिया कि वो खैरियत के साथ शहर से निकल चुके होंगे। शाम 6:30 बजे मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो सीता भी जिद पर आ गई कि वो भी मेरे साथ चलेगी। दोनों का जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने सीता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर कोई धोखा भी हुआ तो हम में से कम एक तो बच जाएगा। सीता बड़ी मुश्किल से पीछे रह जाने पर तैयार हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो मेरे फैसले से खुश नहीं है। उसने मुझे इस तरह रुखसत किया जैसे ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मेन बाजार ज्यादा दूर नहीं था और मुझे मुंबई होटल तलाश करने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये रेस्टोरेंट एक बारोनक साइड स्ट्रीट के कॉर्नर पर वाक़ था। इसका एक दरवाजा साइड स्ट्रीट की तरफ भी था। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजरें सामने लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गईं। ठीक 7 बज रहे थे। साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। गाहकों में जवान और खूबसूरत लड़कियां भी शामिल थीं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थीं। ये रेस्टोरेंट खासा बड़ा था और साइड स्ट्रीट वाले दरवाजे से जरा आगे कैबिन भी थे और हर कैबिन के सामने पर्दा खिंचा हुआ था। बाबूराव मुझे नजर नहीं आया। मैं साइड स्ट्रीट के दरवाजे के करीब एक ऐसी मेज पर बैठ गया जहां से दोनों तरफ निगाह रखी जा सके। मेरे बैठने के फौरन ही बाद वेटर भी नाज़िल हो गया और मैंने उसे चाय का ऑर्डर दे दिया। अभी मैं चाय पी रहा था कि एक उधेड़ उम्र औरत सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने उकाबी नजरों से हाल का जायजा लिया और नपे तुले कदम उठाती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो सूरत ही से फाहिशा लगती थी। उसने लिबास भी कुछ ऐसा पहन रखा था कि किसी शरीफ आदमी को उसकी तरफ निगाह उठाते हुए भी शर्म आती थी। तुम अकेले बैठे बोर नहीं हो रहे श्रीमान जी? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे अकेला ही रहने दें श्रीमती जी, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मेरा एक दोस्त यहाँ आने वाला है और उसका ताल्लुक पुलिस से है। ऐसा न हो तुम्हारे लिए कोई समस्या पैदा हो जाए। उसका चेहरा हुनक सा हो गया। वो एक झटके से उठ गई और फिर वो रेस्टोरेंट में भी नहीं रुकी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और फिर वक्त गुजरता रहा और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। बाबूराव ने ठीक 7 बजे का कहा था और 7:25 हो चुके थे। मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा।
बाबू राव ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली। कल जब उसने हमें देखा था तो वो अकेला था और हम 5 थे। जाहिर है वो अकेला हम पर काबू नहीं पा सकता था। वो हमारे करीब आ गया और अपने बारे में एक फर्जी कहानी सुना डाली और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था कि उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था और मरने से पहले 2-4 को तो गिरा ही सकता था। 7:30 पर मैं उठ गया। बिल अदा करके रेस्टोरेंट से निकला तो मेरे आसपास कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दी। वैसे इंटेलिजेंस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते कि इस किस्म की सरगर्मियों को दूसरों की नजरों में आने दें। मैं इधर उधर देखता हुआ वापस चल पड़ा। मैंने गरचे अपने ताकुब का ख्याल रखा था, लेकिन ये शाम का वक्त था। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त थी और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उनमें कोई मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मकान के सामने पहुंचकर मैं ठिठक गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैं मुड़कर गली में इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से एक आदमी और 2 औरतें आ रही थीं। करीब पहुंचकर उनमें से एक औरत मेरी तरफ आ गई। चाबी मेरे पास है। सीता की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसका चेहरा चुनरी से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसकी सूरत नहीं देख सका। उसने ताला खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। सीता ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे लिपट गई। ये क्या हरकत थी? कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देती? सीता ने चेहरे पर से चुनरी हटाते हुए कहा। हम कमरे में आ गए। सीता ने फूलदार कपड़े का गागरा और चोली पहन रखी थी और सर पर चुनरी ओढ़ रखी थी। और फिर उसने बताया कि मेरे जाने के चंद मिनट बाद ही वो लिबास पहनकर मेरे पीछे निकल खड़ी हुई थी और मुंबई रेस्टोरेंट के करीब साइड स्ट्रीट में खड़ी होकर मेरी निगरानी करती रही थी। उसके कहने के मुताबिक मैं एक लम्हा को भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। उसने उस फाहिशा औरत को भी देखा था जो मेरी मेज पर आई थी और जिसे मैंने भगा दिया था। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम क्या कर लेती? मैंने कहा। 2-4 को तो गिरा ही देती। उसने कहते हुए चोली में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। ये जगलनाथ का पिस्तौल है। मेरे पास जो पिस्तौल था वो भी लोदरवा कैंप ही से मारा गया था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर उछल पड़े। ये कौन हो सकता है? मैंने कहा और उसके साथ ही मेरे जहन में बाबू राव का ख्याल उभरा। दस्तक देने का अंदाज दोस्ताना था। अगर कोई गड़बड़ होती तो इस तरह हल्की दस्तक ना दी जाती। हम दूसरे कमरे से बाहर आ गए। सीता पिस्तौल संभाल कर सहन के एक तारीक गोशे में दुबक गई। मैंने भी अपना पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। इस दौरान दस्तक की आवाज दोबारा उभरी थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया और दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो बाबू राव ही था और खाली हाथ था। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके सामने आ गया। माफ करना दोस्त, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मुझे तुमसे मुलाकात के लिए ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मुझसे मुलाकात के लिए रेस्टोरेंट में नहीं आया था, बल्कि दूर खड़े रहकर रेस्टोरेंट की निगरानी करता रहा था और फिर मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रहा था, अगर मैं कल तुमसे मुलाकात के लिए इस मकान का पता पूछता तो तुम कभी ना बताते और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। आओ अंदर कमरे में बैठकर बात करते हैं, मैंने कहा। हम कमरे में आए तो सीता भी आ गई। उसने पिस्तौल दोबारा चोली में छुपा लिया था। ये तुम दोनों के कागजात हैं। बाबू राव ने जेब से 2 कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये वहीदुद्दीन और रजिया बेगम के नाम के कागजात थे और इस अमर की तस्दीक की गई थी कि ये दोनों जैसलमेर के शहरी हैं। दोनों कागजों पर कोतवाल की मोहर और कोतवाल के दस्तखत भी सबत थे। ये कागजात मुस्लिम नामों से इसलिए बनवाए गए थे कि इस शहर में मुसलमान भी कसीर तादाद में आबाद थे और पोखरान में तुम जिस शख्स को मिलोगे वो भी मुसलमान है। मैं तुम्हें उसके बारे में तफसील से बता दूंगा। वैसे राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। किसी किस्म की चेकिंग के वक्त मुसलमान औरतों को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। बाबू राव के खामोश होने पर मैंने और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीता उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगी। हमें कब जाना होगा और गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। गाड़ी सुबह तुम्हें अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। उसमें चाबी भी लगी होगी। नीले रंग की सेडान है। तुम लोग सुबह ठीक 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।